Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Kiran Amir and I am the Director Operations at Parsa Echo Pakistan Superhub. I would like to welcome you all to TB Echo launch by IHITC Islamabad. This session is in series of TB Echo. It's in collaboration with Medical Microbiology and Infectious Disease Society of Pakistan and Common Management Unit TB, HIV, AIDS and Malaria. And it's also supported by unrestricted educational grant by Sami Pharmaceutical Private Limited. Today's session is epidemiology and current situation of TB in Pakistan, and our expert for today is Dr. Bushra Jameel. Before I introduce you to our expert for today's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project ECHO, based in USA, with the objective to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage participation, so you can unmute yourself for questions or use the raised hand option or chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on our YouTube channel. Link will be shared by Haris in chat box. For CME credits for upcoming sessions, please contact Uzair, our coordinator. His number is mentioned on the banner. Our expert, Dr. Bushra Jameel, is a leading consultant in infectious disease, also served as Dean of Infectious Disease at College of Physicians and Surgeons of Pakistan, and Chief of Internal Medicine, Endocrinology and Infectious Disease at Aga Khan University and Hospital, Karachi. She is currently President of Medical Microbiology, Infectious Disease Society of Pakistan, also National Coordinator, Common Management Unit, HIV, AIDS and Malaria, and CMO IHITC. So I will now hand over to Dr. Razia Fatma, who is also the facilitator for today's session. Dr. Razia. Thank you so much, Kiran, for your introduction and your support to launch this TB Echo today. I'm Dr. Razia Fatma. I'm Chief Research at the Common Unit to Manage TB, AIDS, and Malaria. And we are very honored to have this launch today. Since Dr. Bushra has joined the Common Management Unit, we were planning for this launch formally. And today we are very pleased that formally we have launched this. So just in addition to what Kiran said, I think we shared a link. Ashifa has shared a link in the chat box for the pre-test questionnaire. You're kindly requested to fill in that pre-test, and this is in the Google form so that we can know and we can analyze. We will also be sharing the post-test link after Dr. Bushra's presentation. So after this, I think I straight away hand over to Dr. Bushra Jameel for her presentation. Thank you so much. Thank you very much, Razia. And thank you, Kiran. Thank you, Parsha, for collaborating with us and making this activity possible for IHITC, MMIDSP, and Common Management Unit for AIDS, TB, and Malaria grants. So, सबसे पहले मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है TB Echo एक्टिविटी में. And now I'm going to start my presentation. Okay, so हम 5 मिनट रुक जाते हैं. जो लोग प्री टेस्ट कर रहे हैं, please try and complete the pre-test before I start my presentation. ठीक है, presentation शुरू करने से प्री टेस्ट कर लें. उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग प्री टेस्ट है और उसके जवाब आपको इस प्रेजेंटेशन में मिल जाएंगे. सो फिर देख लीजिएगा कि ये प्रेजेंटेशन यूजफुल थी आप लोगों के लिए या नहीं जब आप पोस्ट टेस्ट करेंगे तो. सो हम 5 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं.
जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है प्लीज प्री टेस्ट कर लीजिए। प्री टेस्ट का लिंक चैट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके प्री टेस्ट एक्सेस किया जा सकता है। हम 1 मिनट के बाद प्रेजेंटेशन शुरू कर रहे हैं, सो प्लीज कोशिश करके अपना गूगल फॉर्म सबमिट करा दीजिए। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आई होप आप सबने प्री टेस्ट फिल कर लिया होगा। सो आज हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी एंड करंट सिचुएशन ऑफ टीबी इन पाकिस्तान। सो हम सब जानते हैं कि टीबी जो है काफ़ी कॉमन है पाकिस्तान में। पाकिस्तान इज़ अ हाई बर्डन टीबी कंट्री, जिस वजह से हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम टीबी के ऊपर कोई ऐसी एक्टिविटी शुरू करें जिससे तमाम प्रैक्टिशनर्स को फ़ायदा पहुंचे। सो एनीवेज, आज की इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगी कि टेली मेंटरिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी जो है हमारी क्लासीफाई होती है एज ए टेली मेंटरिंग एक्टिविटी। थोड़ी सी बात करूंगी पाकिस्तान में जो सिचुएशन इस वक्त है, कुछ कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करूंगी जो प्रैक्टिशनर्स के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और फिर एक केस प्रेजेंटेशन होगी। सो ECHO जो है, इट स्टैंड्स फॉर एक्सटेंशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ केयर आउटकम्स। ये एक्चुअली टेली मेंटरिंग का एक प्रोसेस है, जिसका मतलब ये है कि आप दूर बैठ के भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इंफॉर्मेशन इम्पार्ट कर सकते हैं जब फेस टू फेस मेंटरिंग पॉसिबल ना हो। और ये उस सूरत हाल में इस्तेमाल किया जाता है जब फासला इतना ज़्यादा हो सेंटर्स के बीच में कि बार बार ट्रैवल करना पॉसिबल ना हो, और इसके ज़रिए से बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऐसे लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं जो एक्चुअली क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं। ECHO का जो मिशन है वो ये है कि इक्विटेबल क्लिनिकल सर्विसेज सबको
फराहम की जाए। इक्विटेबल केयर, एक टर्शरी केयर सेंटर में जहां एक्सपर्ट्स बैठे हैं वहां का क्वालिटी ऑफ केयर और जो दूर दराज के बेसिक हेल्थ यूनिट्स होते हैं उनका क्वालिटी ऑफ केयर में यकीनन फर्क होता है, लेकिन कॉमन प्रिंसिपल्स फॉलो किए जा सकते हैं और इन कॉमन प्रिंसिपल्स में सबकी एंगेजमेंट बहुत जरूरी होती है। सो एको के जरिए हम कोशिश करेंगे कि ये जो डिस्पैरिटी या फर्क है अच्छे सेंटर्स और दूर दराज के सेंटर्स का, उसको कम से कम किया जाए। दूसरा एक ऑब्जेक्टिव हमारी इन सेशंस का ये है कि हम टीबी क्लिनिकल सर्विसेज को अपनी रूटीन मेडिकल सर्विसेज में इनकॉर्पोरेट या इंटीग्रेट कर लें। हर फिजिशियन ये समझता है कि उसे टीबी डायग्नोज करना और ट्रीट करना आता है, और ये बात दुरुस्त भी होती है क्योंकि लोग अपनी पूरी उम्र गुजार देते हैं क्लिनिकल सर्विस में और उनको मालूम होता है, रिकग्निशन भी हो जाती है, ट्रीटमेंट भी हो जाती है। लेकिन किसी भी मर्ज के इवोल्यूशन में और साइंस के इवोल्यूशन में खासतौर पे नई नई चीज़ें आती रहती हैं। तो हमारा एक मकसद ये होगा कि ऐसे डॉक्टर्स जो फेमिलियर नहीं है टीबी डायग्नोसिस एंड केयर से, उनका भी फायदा हो, और ऐसे डॉक्टर्स जो काफ़ी अरसे से टीबी में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी हम नए कॉन्सेप्ट से और नई डेवलपमेंट से फेमिलियराइज कराएं ताकि क्वालिटी ऑफ केयर बेहतर हो सके। सो टीबी क्लिनिकल सर्विसेज जो हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं किसी भी अच्छे सिस्टम में। अगर आप टीबी के मरीजों को सर्विस फराहम कर रहे हैं, सो उसके अंदर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी डॉक्टर की ये होती है कि अप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक वर्कअप किया जाए, वो टेस्ट किए जाएं जो ऑप्टिमल है डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। और काफ़ी सारी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं और उसी के हिसाब से सजेस्टेड एल्गोरिदम्स चेंज हो रहे हैं। सो हम इन अपने सेशंस के जरिए आपको इन नई टेक्नोलॉजीज और नए टेस्ट के बारे में बताएंगे कि कब कौन सा टेस्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। एक दफ़ा अगर आपको शक हो गया कि इस मरीज को टीबी हो सकता है और आपने उसका डायग्नोस्टिक वर्कअप भी इनिशिएट कर लिया, आपकी दूसरी अहम जिम्मेदारी ये होती है कि आप नोटिफिकेशन करें डिजीज की। नोटिफाई एवरी पेशेंट एंड गेट देम रजिस्टर्ड इन द टीबी प्रोग्राम। इसके दो फायदे हैं, वैसे फायदे तो बहुत ज्यादा है लेकिन दो मेन चीजें जो जहन में रखने की हैं वो ये है कि नोटिफिकेशन से आपके टीबी प्रोग्राम को ये मालूम हो जाता है कि कितने टीबी के मरीज इस वक्त हैं प्रोग्राम में रजिस्टर्ड, और दूसरा ये होता है कि मरीज को फिर टीबी प्रोग्राम के जरिए जो सहूलियात मुयस्सर की जा सकती हैं वो सब मरीज के लिए आप हासिल कर सकते हैं, जिसके अंदर फ्री टेस्ट और फ्री ट्रीटमेंट, और फिर अगर खुदा न खास्ता मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो तो सोशल सपोर्ट सर्विसेज भी हैं, राशन दिया जाता है, मरीजों को किराया दिया जा सकता है। तो जो हकदार हो उनको उनका पूरा हक मिलता है अगर मरीज को आप नोटिफाई कर देंगे। और वैसे भी कई इलाकों में ये एक लीगली बाइंडिंग हो चुका है कि आप अगर टीबी का मरीज को डायग्नोज करते हैं तो आप उसको नोटिफाई करें। फिर हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिशियंस को एंगेज करना है कि क्योंकि टीबी बहुत आम मर्ज है, बहुत मर्तबा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट फॉर इंस्टेंस मरीज देखते हैं अपने क्लिनिक में लेकिन वो तवज्जो नहीं देते कि हो सकता है इस टीबी के मरीज डायबिटीज़ के मरीज को टीबी भी हो। तो बहुत सारे डिफरेंट सब स्पेशलिटीज़ के क्लिनिशियंस को भी हर वक्त इस बात को जहन में रखना चाहिए कि वो टीबी से कभी ना कभी डील कर सकते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, बेसिक सी मैनेजमेंट हर एक को आनी चाहिए। फिर हम इन सेशंस के जरिए डिफिकल्ट या चैलेंजिंग केसेस रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करेंगे और हम आपको दावत देंगे कि आप में जो भी लोग अपने केस डिस्कस करना चाहें वो हमसे राब्ता करें, और फिर हमारा सेशन जो होगा आपकी केस प्रेजेंटेशन से शुरू होगा और उसमें एज अ ग्रुप हम सब बैठ के आपके मसाइल डिस्कस करके ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट प्लान फॉर्मुलेट करने की पोजीशन में होंगे। और लास्टली ये सारे सेशंस जो होंगे नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह CME एक्रेडिटेड होंगे, लेकिन पैटर्न इसका यही रहेगा, प्री टेस्ट आपको दिया जाएगा जो कि आज भी हमने दिया, हालांकि आज का सेशन CME एक्रेडिटेड नहीं है, लेकिन ये इसलिए दिया गया है आपको ताकि आप पैटर्न से फेमिलियर हो जाएं कि हर दफ़ा आपको एक टेस्ट दिया जाएगा जिसमें आप अपनी नॉलेज बेस को टेस्ट करेंगे सेशन से पहले और सेशन से बाद। उससे आपको और हमें दोनों को ये अंदाजा हो जाएगा कि हमारा सेशन कितना मुफीद रहा टू इम्पार्ट नॉलेज टू यू ऑल। सो अब पाकिस्तान के मसाइल पे आ जाते हैं। पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं क्या? वी हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ मिसिंग केसेस ऑफ टीबी। ये हमें कैसे मालूम हुआ कि हमारे मिसिंग केसेस हैं टीबी के?
वो हमें इस तरह मालूम हुआ है कि टीबी के एस्टिमेट्स किए जाते हैं मुल्कों में, ठीक है, और उन एस्टिमेट्स के जरिए पता चलाया जाता है कि कितने एक्सपेक्टेड केसेस होंगे टीबी के। उस हिसाब से हमारे नंबर ऑफ नोटिफाइड केसेस काफी कम है। दूसरा एक ज्यादा रिलायबल तरीका जो होता है वो प्रेवलेंस सर्वे होता है, कि आप एक्चुअली पॉपुलेशन में जाके देखें कि कितने मरीज आपकी कम्युनिटी में है, जो कि बहुत कॉस्टली होता है। और हमारे पास टीबी प्रेवलेंस सर्वे काफी साल पहले हुआ था, और एक अब जो होने वाला है वो उस प्लानिंग के फेज में है। दूसरा हमारा बड़ा मसला ये है कि 50% से ज्यादा केसेस की बैक्टीरियोलॉजिक कंफर्मेशन होती ही नहीं है। यानी कि अगर किसी को पल्मोनरी टीबी है और उसे खांसी और बलगम है, तो हम उसको अलामात या एक्सरे की बुनियाद पे डायग्नोज करके उसका इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन हम बलगम का टेस्ट करवाते ही नहीं है। सो बैक्टीरियोलॉजिक कंफर्मेशन होती ही नहीं है। इसी तरह एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में भी हम वो टिश्यू नहीं भेजते बैक्टीरियोलॉजिक कंफर्मेशन की जिसमें माइक्रोस्कोपी और जीन एक्सपर्ट दोनों शामिल है। तो ये टेस्ट जब नहीं होते तो वो क्लासिफाई होता है क्लिनिकली डायग्नोज टीबी। और किसी भी प्रोग्राम और क्लिनिकल सर्विसेज की एफिशिएंसी को इससे जज किया जा सकता है कि वो जो टेस्ट अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं या नहीं। सो क्लिनिकली डायग्नोज टीबी की इतनी ज्यादा शरह हमें ये बताती है कि हमारे पास टेस्ट तो मौजूद है, लेकिन हम उनको ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। और इसके अंदर फिर खदशा ये होता है जब आपकी बैक्टीरियोलॉजिक कंफर्मेशन नहीं हुई कि हो सकता है मरीज को टीबी हो ही ना, और हो सकता है आप ड्रग ससेप्टेबल टीबी समझ के ट्रीट कर रहे हो और वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो। तो ये काफी खतरनाक सी सिचुएशन है। और सब्सिक्वेंट सेशंस के अंदर हम तफसील से डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन की बात करेंगे। फिर एक अहम मसला ये है कि बहुत से सेंटर्स के अंदर, खासतौर पे जो प्राइवेट सेटअप्स हैं या टर्शरी केयर सेंटर्स हैं, वहाँ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के केसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू पल्मोनरी टीबी। तो ये भी बहुत अहम है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की डायग्नोसिस कैसे की जाए, उसकी कंफर्मेशन कैसे की जाए, उसे मैनेज कैसे किया जाए। और हम ये अपने सब्सिक्वेंट वेबिनार्स के अंदर ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे तफसील से। फिर जो लोग ओपन पल्मोनरी टीबी से सफर कर रहे होते हैं, यानी कि बलगम में जरासीम मौजूद होते हैं, वो दूसरे लोगों के लिए किस हद तक खतरा बन सकते हैं, इस चीज की रिकग्निशन उमूमन नहीं होती। फैमिली में से एक मरीज आता है जिसको ओपन पल्मोनरी टीबी होता है, घर में 10, 15, 20 लोग होते हैं, ना उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, ना यह देखा जाता है कि उनको लेटेंट या एक्टिव टीबी तो नहीं है। तो ये एक खदशा और खतरा होता है जिसको जहन में हर वक्त रखना है। और हमारे इन सेशंस का एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आपको हर मर्तबा याद दिलाएं कि कॉन्टैक्ट्स, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स की स्क्रीनिंग और उनका इलाज बेहद जरूरी है अगर हमने टीबी को अपने मुल्क से खत्म करना है तो। इस मैप में आपको वो दुनिया के वो 8 ममालिक नजर आ रहे हैं which account for the highest number of incident cases, यानी कि नए केसेस। दुनिया की जो 8 ममालिक 2/3 ऑफ ग्लोबल बर्डन के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस है टीबी का, उसके बाद इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस और फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान उन हाई बर्डन कंट्रीज में से है जो 2/3 ऑफ टोटल ग्लोबल बर्डन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मजीद ये कि पाकिस्तान उन कंट्रीज में भी है जो गैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी उन लोगों का जो न्यूली डायग्नोज टीबी हैं और जो एस्टिमेटेड नंबर्स हैं, देयर इज अ गैप बिटवीन दीज टू। और पाकिस्तान उस गैप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि यहाँ ना डायग्नोसिस होती है ना रिपोर्टिंग होती है, तो अंडर रिपोर्टिंग हो रही है टीबी की पाकिस्तान में। और हमें इस चीज को फाइट करके इसको एलिमिनेट करना है कि ना अंडर रिपोर्टिंग हो ना अंडर डायग्नोसिस हो, और इसमें हम सब की जिम्मेदारी बनती है। और ये वन ऑफ द रीजंस है कि हमने ये एको प्रोग्राम लॉन्च किया है टीबी के लिए। ये जो एस्पेक्ट्स मैंने आपको प्रेजेंट किए ये इतने अहम हैं कि 2018 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूएन हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन दिया गया था जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, और इसका फोकस था मिसिंग पीपल विद टीबी।
और ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि इन मिसिंग पीपल जो है टीबी के, जो ना डायग्नोज हो रहे हैं ना रिपोर्ट हो रहे हैं, उनका नंबर सन 2022 तक इतना कम किया जा सके कि टीबी को खत्म करना मुमकिन हो सके। अब ये एफर्ट्स तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी हमने दे दी, हमने मीटिंग्स भी कर लिए, बयान भी दे दिए, फैसला भी कर लिया, लेकिन फिर 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक आ गया। लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक उन बहुत सी वजूहात में से सिर्फ एक रीजन है कि हम इस UNHLM स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर सके। इसी तरीके के सेटबैक्स नोटिफिकेशन के अलावा हमें ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की डायग्नोसिस और टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट्स में और पीडियाट्रिक टीबी के लिए भी हम फेस कर रहे हैं, और इनकी बात हम करेंगे सब्सीक्वेंट वर्कशॉप्स में। सो अगर आप टीबी एपिडेमियोलॉजी देखें तो पाकिस्तान रैंक्स 5th अमंग 30 हाई बर्डन कंट्रीज, और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में भी इस वक्त रैंक जो है पाकिस्तान का बढ़ने की तरफ है, तो प्रॉब्ली 4th है हम DRTB में, लेकिन बहुत हाई बर्डन है हमारे पास ड्रग ससेप्टेबल और ड्रग I'm connected. जी थोड़ा सा कनेक्शन इशू है, but she is trying to connect again. जी। सो हम बात कर रहे थे अपने सेंटर्स की। सो 33 यूनिट्स ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए हैं, 426 एक्सपर्ट मशीन्स हैं अक्रॉस द कंट्री, 14 कल्चर एंड 8 DS ड्रग ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग साइट्स हैं। इसमें पूरी कोशिश ये की जा रही है कि एक्सपर्ट मशीन्स का नंबर बढ़ाया जा सके ताकि हम जिन एक्सपर्ट को ऑफर कर सके एज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जब भी कोई मरीज आता है आपके पास। ट्रीटमेंट सक्सेस रेट अलबत्ता काफी अच्छा है हमारा, 90% से ज्यादा ड्रग ससेप्टेबल टीबी। We can't see the screen. Can you share the screen? लेकिन ये स्टफ तो नहीं है। ये उससे गलत शेयर कर देना, इससे कनेक्ट हो जाएगा, उनकी स्क्रीन पे म्यूट शेयर कर होंगे तो फिर होगा। जरा देखो ओके, एक मिनट रिज्यूम शेयर Stop sharing clip is visibility. पर मैं को होस्ट नहीं कर कुछ डिस्कनेक्ट करके मे बी वी शुड मैंने स्क्रीन पकड़ी। हाँ
आगे रास्ते इससे ऊपर, It's visible now. इससे ऊपर नहीं, और पीछे हाँ, इस पे ही आ जाए, प्री कोविड एरा, इसके बाद वाली। ओके, सो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ट्रीटमेंट सक्सेस रेट हैज बीन क्वाइट गुड, क्योंकि हम ये देखते हैं ट्रीटमेंट सक्सेस हम मेजर कर रहे हैं उन लोगों में जो रजिस्टर्ड केसेस हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर कंट्री, लेकिन जो लोग रजिस्टर्ड हो जाते हैं सिस्टम में, अगर उनको फॉलो किया जाए और वो कंप्लायंट हो विद ट्रीटमेंट, तो 90% सक्सेस है ड्रग ससेप्टेबल टीबी का एंड 64% सक्सेस रेट है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का। और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की हम बात करेंगे सब्सिक्वेंट वेबिनार्स में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वी शुड एक्चुअली डिस्कस इट इन डिटेल। अब देखते हैं कि कोविड का इम्पैक्ट क्या हुआ टीबी केयर इन पाकिस्तान पे। सो कोविड-19 पेंडेमिक के अंदर शुरू में तो बहुत मेजर किस्म का लॉकडाउन हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने टीबी क्लिनिक्स में आना छोड़ दिया या कम कर दिया। ओपीडी सर्विसेज बिल्कुल स्टॉल हो गई और टीबी केयर इसी वजह से अफेक्ट हुआ, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर। फिर मॉडलिंग एनालिसिस क्या बता रहा है कि कोविड का इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड क्या हुआ है। मॉडलिंग एनालिसिस ये बता रहा है कि हम 2013 वाली स्टेटस पे चले गए हैं रिगार्डिंग ग्लोबल टीबी इंसिडेंस, और 2016 वाली लेवल पे चले गए हैं रिगार्डिंग टीबी डेथ्स। तो 5 से 8 साल का सेटबैक हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक इन आवर टीबी ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स। टीबी की केस नोटिफिकेशन बहुत कम हुई है तमाम टीबी हाई बर्डन कंट्रीज के अंदर। पाकिस्तान में क्या हुआ है, हमारी लेबोरेटरी टेस्टिंग कम हो गई, इमीडिएटली आफ्टर स्टार्ट ऑफ पेंडेमिक 80% नीचे चली गई, लेकिन ड्रग ससेप्टेबल टीबी के केसेस में 35% डिक्लाइन हुआ, 50% डिक्लाइन हुआ और 35% डिक्लाइन हुआ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की केस नोटिफिकेशन में। हम अज्यूम करते हैं कि मोर्टेलिटी ड्यू टू टीबी एंड लॉस टू फॉलो अप उतना ही रहा जितना पहले था, लेकिन ये हमारी अजम्पशन है। वी डोंट नो द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन दीज टू मार्कर्स। इस ग्राफ में आपको नजर आ रहा है कि एक्सपर्ट एमटीबी टेस्टिंग कितनी, एक्सपर्ट टीबी टेस्टिंग डिक्लाइन हुई है बाय 37% बिकॉज ऑफ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन आवर क्लिनिक्स। और लोगों ने खुद भी आना कम कर दिया था, एक तो क्लिनिक्स बंद थे, लॉकडाउन्स, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक, न्यूट्रिशनल, काउंसलिंग, साइकोसोशल सपोर्ट, ये सब की सब अफेक्ट हुई हैं। दूसरा ये हुआ कि कोविड-19 और टीबी के सिम्टम्स काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं शॉर्ट टर्म में, खांसी, बुखार का होना। तो बहुत से लोग इन दोनों बीमारियों को छुपाते हैं बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा अटैच्ड विथ टीबी, और शुरू के दिनों में कोविड-19 के साथ भी बहुत ज़बरदस्त स्टिग्मा अटैच था। और डिस्क्रिमिनेशन हम चाहे जितना भी डिनाई करें, वी डू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट टीबी पेशेंट्स, और इसकी हम बात करेंगे अपने सब्सिक्वेंट सेशंस के अंदर। वल्नरेबल कम्युनिटीज़ जो होती हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, एक तो वैसे ही उनका एक्सेस टू हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं है, लेकिन फिर वो लोग अपने मर्ज को छुपाते भी हैं। फिर कोविड की वजह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और पब्लिक हेल्थ एक्शंस जो भी अटैच्ड हैं टीबी कंट्रोल के साथ, वो सब के सब इंटरप्ट हो गए। नेशनल और प्रोविंशियल टीबी प्रोग्राम्स ने काफ़ी काम किया इस दौरान। एडवाइजरी इन्होंने इशू की जिसमें टीबी की दवाइयों की अनइंटरप्टेड सप्लाई को इंश्योर किया गया और इसी तरह स्पेसिमेन ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट किया गया। और इस वजह से इन तमाम एक्शंस का नतीजा ये हुआ कि आखिरी क्वार्टर ऑफ 2020 में केस नोटिफिकेशन और सारे जो पैरामीटर्स थे वो बेहतर हो गए, क्योंकि प्रोग्राम्स वर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि हमें ये मसाइल हो रहे हैं
उनको कैसे डील करना है। मरीज कम आए हैं क्लिनिक्स में, जो क्लिनिक्स में आए उनकी ट्रीटमेंट और उनके टेस्ट होते रहे, लेकिन बहुत सारे लोग क्लिनिक्स पर नहीं आए, और जो लोग ऑलरेडी टीबी की ट्रीटमेंट पे थे उनको घरों पे टीबी की दवाइयाँ फराहम की जाती रही। सो टीबी HIV को इन्फेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हर वक्त जहन में रखना चाहिए, क्योंकि HIV पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है एंड वी आर ऑलरेडी अ हाई टीबी बर्डन कंट्री। सो टीबी HIV को इन्फेक्शन के ट्रू एस्टिमेट्स जो हैं वो हमें मालूम नहीं है। HIV पेशेंट्स के लिए ये मैंडेटरी है कि हर विजिट पे उन्हें कम से कम वर्बली स्क्रीन किया जाए कि कहीं उन्हें टीबी है तो नहीं, जिसमें उनकी अलामात पूछी जाती है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है कि उनमें अलामात मौजूद हैं या नहीं, और अगर अलामात हों तो उनको टीबी के लिए बाकायदा लेबोरेटरी या रेडियोलॉजिकली स्क्रीन किया जाता है। टीबी पेशेंट्स का भी ये है कि टीबी पेशेंट्स को HIV के लिए ज़रूर स्क्रीन करना चाहिए, और अब WHO की गाइडलाइंस हमें ये कहती हैं कि हर नए टीबी पेशेंट को HIV के लिए ज़रूर स्क्रीन करना चाहिए। लेकिन ये वो एक नुक्ता है जिसे हम सब भूल जाते हैं जब भी हम टीबी पेशेंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं, लेकिन हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब भी कोई भी मरीज आए जिसमें आप टीबी सस्पेक्ट कर रहे हैं उसकी HIV के लिए स्क्रीनिंग ज़रूर कर ली जाए। टू समराइज दिस पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन, हमारे एक जो प्रॉब्लम है वो ये कि मिसमैच है बिटवीन एस्टिमेटेड केसेस एंड जो एक्चुअली डायग्नोज और ट्रीट हो रहे हैं, और इस मिसमैच की वजह से बहुत से पेशेंट्स पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनका टीबी का मर्ज डायग्नोज ही नहीं हुआ, और वो मर्ज को फैलाने के लिए भी जिम्मेदार हैं, और मर्ज के जो खराब नताइज हैं उनसे भी वो अफेक्ट होते हैं। ये गैप जो है कोविड-19 की वजह से बढ़ गया है। टीबी HIV को इन्फेक्शंस को हम ना स्क्रीन कर रहे हैं, उसके लिए ना रिपोर्ट कर रहे हैं, ना ट्रीट कर रहे हैं, और इसके हमने वजूहात डिस्कस करनी है। इसके साथ हम चलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन, जिसमें मैं केस आपको दिखाऊंगी। ये असली केस नहीं है, फिक्टिशियस है, जिस वजह से हमने इसमें नाम भी इस्तेमाल किया है। तो हम बात कर रहे हैं मिस्टर अनवर की, जो कि एक रिक्शा ड्राइवर है। वो आपके पास क्लिनिक पे आते हैं और इन शिकायत के साथ कि उन्हें बुखार हो रहा है और खांसी हो रही है पिछले 3 हफ्तों से। वो गुटखा इस्तेमाल करते हैं और वो आपको ये बताते हैं कि पिछले कुछ दिन से उनको खांसी के साथ बलगम आ रहा है जो कि काफ़ी थिक है और सुर्ख रंग का है। वो आपको ये भी बताते हैं कि उनकी वालदा का इंतकाल 3 साल पहले हेमोप्टिसिस से हुआ था। इनके बलगम में खून इतना ज़्यादा आया था कि उनका उसी मर्ज में इंतकाल हो गया था। सो आप उनसे क्या क्या सवाल पूछेंगे? क्या आप उनसे ये पूछेंगे कि वो सिगरेट पीते हैं या नहीं? आप उनसे पूछेंगे कि क्या उनका वजन कम हो रहा है, उन्हें भूख लग रही है या नहीं, रात में पसीना आता है या नहीं, उनको कोई और मर्ज तो नहीं है जो कुछ अरसे से चल रहा हो, मसलन डायबिटीज, कोई ऐसे टेस्ट जो पहले हो चुके हैं उनके इसी मर्ज के उसमें कॉन्टेक्स्ट में, या उनको पहले टीबी हो चुका है या नहीं। सो आप ये तमाम सवालात उनसे पूछेंगे। फिर जब मैनेजमेंट प्लान बना रहे होंगे तो आप उनके कौन से ऐसे टेस्ट कराएंगे जिससे आपको उनका मैनेजमेंट प्लान बनाने में आसानी होगी। तो इसमें 5 चॉइसेस हैं। क्या आप उनके बलगम का FB स्मीयर कराएंगे, या AFB कल्चर कराएंगे, या जीन एक्सपर्ट कराएंगे, या उनका चेस्ट एक्सरे कराएंगे PAVU, या उनका ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट कराएंगे जिसको मॉन्टू टेस्ट भी कहते हैं। इसमें अगर आप देखें तो इसमें 4 जवाब दुरुस्त हैं और 1 जवाब दुरुस्त नहीं है। जो जवाब गलत है इसमें वो ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट है, क्योंकि ऐसे मरीज में जिसमें टीबी के बहुत ज़्यादा चांसेस होने के, उसमें ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन आपको ये ट्रीटमेंट प्लान बनाने में मदद हरगिज नहीं करेगा। ठीक है। सो मॉन्टू टेस्ट, जिसको ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट भी कहते हैं, या इग्रा जो इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे है जिसको ज्यादा सेंसिटिव समझा जाता है, ये दोनों टेस्ट एक ही चीज के बारे में बताते हैं, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स टू माइकोबैक्टीरियम टीबी, और ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, वो सिर्फ जिस्म में टीबी जरासीम की प्रेजेंस बताते हैं आपको। मर्ज होने के बावजूद 15% तक लोगों में ये टेस्ट नेगेटिव हो सकते हैं, और किसी ऐसे मरीज में जो हेमोप्टिसिस के साथ प्रेजेंट करे, जैसे मिस्टर अनवर हैं, हो सकता है उनको टीबी ना हो, लेकिन क्योंकि उनकी वालदा को प्रोबेबली टीबी था इन द पास्ट, उनमें स्किन टेस्ट और इग्रा दोनों पॉजिटिव आ सकते हैं और वो मिसलीडिंग होंगे।
ठीक है, हो सकता है हेमोप्टिसिस की वजह कुछ और हो इस केस में। यू आस्क द पेशेंट टू गेट स्प्यूटम एक्सपर्ट, जो कि टेस्ट ऑफ चॉइस है, और एक्सरे चेस्ट, ये दोनों बिल्कुल सही इन्वेस्टिगेशंस हैं, इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस जो किसी भी ऐसे मरीज में कराई जानी चाहिए जिसमें आप टीबी का मर्ज सस्पेक्ट कर रहे हो। जब तक आप रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, आप अपने नोट्स में इस मरीज को किस तरीके से डॉक्यूमेंट करेंगे? क्या ये प्रिजम्पटिव टीबी है, यानी आप अज्यूम कर रहे हैं इन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, यानी कि कोई अलामात नहीं है लेकिन आप अज्यूम कर रहे हैं कि टीबी है, या आप इनको लेबल करेंगे कि ये प्रिजम्पटिव टीबी है ना सिम्प्टोमेटिक पेशेंट, यानी कि ऐसे मरीज में जिसमें अलामात है। क्या ये बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म हो चुका है क्योंकि आपने जीन एक्सपर्ट के लिए भेज दिया है, या ये क्लिनिकली डायग्नोज्ड है, या ये कंफर्म डायग्नोसिस है? तो क्लिनिकली डायग्नोज्ड टीबी का केस वो होता है जिसमें अभी बैक्टीरियोलॉजिकल कंफर्मेशन नहीं हुई है। ठीक है, तो ये क्लिनिकली डायग्नोज्ड हो गया, और इसके अंदर वो केसेस आते हैं जिनके एक्सरे की बुनियाद पे या लेबोरेटरी के कुछ टेस्ट की बुनियाद के ऊपर नॉट बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म, माइक्रोस्कोपी अभी नहीं हुई है और जीन एक्सपर्ट नहीं हुआ है, सो ये अभी भी क्लिनिकली डायग्नोज्ड रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। क्लिनिकली डायग्नोज्ड टीबी केस का जब आपने टेस्ट भेज दिए हैं, इसको आपने अभी तो प्रिज्यूम्ड टीबी इन अ सिम्प्टोमेटिक पेशेंट हु इज क्लिनिकली डायग्नोज्ड, ये सही कैटेगराइजेशन है इस केस की। लेकिन जब जीन एक्सपर्ट का रिजल्ट या एएफबी माइक्रोस्कोपी का रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, तो आपको इसको रिक्लासिफाई करना होगा अगर ये बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म हो जाता है, और ये इंतहाई जरूरी है क्योंकि ये एक इंडेक्स है जिससे टीबी प्रोग्राम्स ये जज करते हैं कि मर्ज के फैलाव के कितने चांसेस हैं, और इससे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कॉन्टैक्ट की मैनेजमेंट में बड़ी आसानी हो जाती है। प्रिजम्पटिव टीबी का मतलब ये है कि ऐसा शख्स जो जिसमें टीबी के अलामात हों। अच्छा, इसमें एक चीज जो जहन में रखना जरूरी है कि अगर आपके पास कोई एसिम्प्टोमेटिक शख्स भी आता है जिसमें हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग टीबी हो ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर लिविंग कंडीशंस या कोमॉर्बिडिटीज या हिस्ट्री ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट, उनकी भी टीबी स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए। और बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म्ड का हमने बात कर ली, उसको B+ लेबल करते हैं। ये ऐसा शख्स है जिसकी किसी भी सैंपल में से, चाहे बलगम हो या प्लूरल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, CSF वगैरह में, या तो माइक्रोस्कोपी पे या जीन एक्सपर्ट पे टेस्ट पॉजिटिव आए। अब आपने मिस्टर अनवर का एक्सरे चेस्ट करा लिया। एक्सरे को अगर गौर से देखें तो आपको राइट हाइलम के ऊपर कुछ नजर आ रहा है, जो कि आप बहुत आसानी से पिक कर सकते हैं कि कैविटी नजर आ रही है बड़ी सी। सो इन फाइंडिंग्स की बुनियाद पे आप क्या क्या टेस्ट इस मरीज के कराएंगे? आप AFB स्प्यूटम कल्चर कराएंगे, या रूटीन कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराएंगे, बेसलाइन लिवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहेंगे या नहीं, आप इसकी HIV स्क्रीनिंग कराएंगे, और आप इसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कराएंगे। सो कैन वी गो बैक? सो इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो यस में आएंगे। यहाँ पे बहुत से लोग ये बहस कर सकते हैं कि स्प्यूटम रूटीन कल्चर एंड सेंसिटिविटी क्यों कराई जाए। देखें, ये केस हर तरफ से टीबी का केस दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत मर्तबा हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि बलगम के अंदर बजाय टीबी के जरासीम के आपको कोई और जरासीम नजर आते हैं, मसलन स्टेफिलोकोकस ऑरियस, मसलन फंगस, मसलन क्लेब्सियला निमोनिया। सो हर ऐसा मरीज जिसको खांसी और बलगम है और जिसके बलगम में खून आ रहा है और जिसके फेफड़े में कैविटी है, वो जरूरी नहीं कि टीबी हो। सो आपको दूसरे अमराज जो ट्रीटेबल हैं उनको रूल आउट करना भी जरूरी है। इस वजह से ये तमाम सवालात का जवाब यस में होगा। सो अब मिस्टर अनवर पे दोबारा आ जाते हैं। इनका जो था स्प्यूटम स्मीयर भी आपने भेजा और जीन एक्सपर्ट भी भेजा। स्मीयर नेगेटिव है बट जीन एक्सपर्ट पॉजिटिव है, रिफ रेजिस्टेंस नॉट डिटेक्टेड। आप में से जो लोग जीन एक्सपर्ट कराते रहते हैं वो ये देखेंगे कि दिस इज हाउ जीन एक्सपर्ट इज रिपोर्टेड। सो इसका क्या मतलब है? स्मीयर नेगेटिव है, स्मीयर में तो जरासीम दिखा नहीं लेकिन जीन एक्सपर्ट में पॉजिटिव आ गया। क्या इसका ये मतलब है कि इन्फेक्शियस टीबी नहीं है क्योंकि स्मीयर तो नेगेटिव है? या इसका मतलब ये है कि टीबी कंफर्म हो गई?
या इसका मतलब ये है कि प्रोबेबली जीन एक्सपर्ट नेगेटिव है क्योंकि माइक्रोस्कोपी पे तो जरासीम नजर नहीं आ रहे, या इसका मतलब ये है कि एक्सपर्ट क्योंकि रिलायबल नहीं है तो उसको रिपीट करके देखना चाहिए टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ टीबी, या फिर आप इंतजार करेंगे स्प्यूटम एफबी कल्चर का बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट प्लीज। सो पीछे चलते हैं, पीछे। सो जीन एक्सपर्ट जो है काफी सेंसिटिव टेस्ट है और वो कम मिकदार में अगर जरासीम हो तो उनको भी पिक कर लेता है, जिस वजह से यहाँ पे जवाब ये होगा कि टीबी इन दिस केस इज कंफर्म्ड। उसका इन्फेक्शियसनेस से कोई ताल्लुक नहीं है कि एफबी स्मीयर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एफबी स्मीयर नेगेटिव हो सकता है, जैसे हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट वन प्लीज। सो मिस्टर अनवर का स्प्यूटम स्मीयर इज रिपोर्टेड एज नेगेटिव। सो क्या इसका ये मतलब है कि टीबी रूल आउट हो गई है, ट्रू या फॉल्स? अब तक का जो एल्गोरिदम था हमारा वो सब ऑप्टिमल था, क्योंकि हम सिर्फ एफबी स्मीयर कराया करते थे और सिर्फ नेगेटिव एफबी स्मीयर की बुनियाद पे हमने बहुत से ऐसे टीबी के पेशेंट्स जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी उनका इलाज नहीं शुरू किया, और इससे बहुत नुकसान हुआ है टीबी प्रोग्राम को। नेक्स्ट प्लीज। इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि किसी भी सैंपल में जरासीम माइक्रोस्कोपी पे पिक होने के लिए 10,000 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर ml ऑफ सैंपल होना जरूरी है। इससे कम तादाद में अगर जरासीम होंगे तो वो स्मीयर नेगेटिव रिपोर्ट हो जाएगा। सो बेतहाशा जरासीम पर ml ऑफ सैंपल होना बहुत जरूरी है, वरना स्मीयर नेगेटिव आएगा। दूसरा जो अहम इशू है वो ये है कि अगर आपने मरीज से कहा कि आप बलगम का सैंपल सबमिट कराएं और उसने सलाइवा का सैंपल सबमिट कर दिया, सो भी एफबी स्मीयर नेगेटिव आएगा। तो सलाइवा और स्प्यूटम में क्या फर्क होता है? सलाइवा वो थूक है जो मुंह और हलक से आता है, और बलगम वो सिक्रीशंस हैं जो फेफड़ों के नीचे वाले हिस्से से जनरेट होते हैं और जिनको आप खांस करके निकालते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। अगर माइक्रोस्कोप के नीचे सलाइवा या थूक को देखा जाए तो उसके अंदर आपको जो चीज नजर आती है वो बहुत बड़े साइज के हेक्सागोनल फ्लैट सेल्स होते हैं, और अगर 20% से ज्यादा स्क्वेमस सेल्स नजर आ रहे हो तो इसका मतलब ये कि सैंपल रिलायबल ही नहीं है, ये थूक का सैंपल है, ये बलगम का सैंपल है ही नहीं, और इस किस्म के सैंपल्स में स्मीयर नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट वन प्लीज। अच्छे बलगम के सैंपल में स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स जो मुंह और हलक में होते हैं बहुत कम नजर आते हैं, और जो फेफड़ों के नीचे से डीप हिस्सों में से आने वाले सेल्स हैं जैसे मैक्रोफेजेस हैं या सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं या पस सेल्स हैं जो किसी भी इन्फेक्शन के अंदर आ सकते हैं, वो ज्यादातर दिखाई देते हैं। तो माइक्रोस्कोपी के ऊपर आराम से पता चल जाता है कि ये सैंपल रिलायबल है या नहीं है। सो रिलायबल स्प्यूटम सैंपल के अंदर अगर जरासीम नजर आ रहा हो तो उसकी वैल्यू है, अनरिलायबल सैंपल की कोई वैल्यू नहीं है इन द डायग्नोसिस ऑफ टीबी और एनी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। फिर ये कि एपिसोडिक शेडिंग होती है, ये भी याद रखिएगा। टीबी के लिए जब स्प्यूटम स्मीयर पे रिलाई किया जाता है तो अमूमन कहा जाता है कि 3 कंसेक्यूटिव डेज पे सैंपल दिया जाए, क्योंकि कभी ऑर्गेनिज्म शेड होते हैं सिक्रीशंस में, कभी नहीं होते। तो एक स्मीयर एग्जामिनेशन का रिजल्ट अगर नेगेटिव है तो आप उसकी बुनियाद के ऊपर टीबी को ना डायग्नोज कर सकते हैं ना रूल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो हमारा जवाब टीबी इज कंफर्म था, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वन प्लीज। अच्छा, अब अनवर के साथ मसला ये है कि उसकी एक बीवी है, 4 बच्चे हैं और उनके वालिद भी हैं। अब स्क्रीनिंग और रिपोर्टिंग पर्पस के लिए अगर हम समझ रहे हैं कि मिस्टर अनवर जो है वो इंडेक्स केस हैं अपने घर में, तो घर वालों को क्या क्लासिफाई करेंगे आप? इनके घर वाले क्या इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, कैजुअल कॉन्टैक्ट्स हैं या हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं? नेक्स्ट वन प्लीज। सो इंडेक्स केस वो होता है जो इनिशियली आइडेंटिफाइड केस ऑफ अ न्यू और रीट्रीटमेंट टीबी ऑफ एनी एज। तो पहला केस अपने हाउस होल्ड में अगर अनवर आइडेंटिफाई हुआ तो इंडेक्स केस कहलाएगा। कॉन्टैक्ट वो होता है जो एक्सपोज हुआ हो इंडेक्स केस से, और इसमें कैजुअल कॉन्टैक्ट्स और क्लोज कॉन्टैक्ट्स और हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स में डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है। क्लोज कॉन्टैक्ट्स वो होते हैं जो हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स नहीं है लेकिन ऑफिस स्पेस शेयर कर रहे हैं या एक एनक्लोज्ड स्पेस शेयर कर रहे हैं इंडेक्स केस के साथ इन द लास्ट 3 months। जबकि हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स वो होते हैं जो उसी एक घर में रह रहे हैं, एनक्लोज्ड स्पेस में रह रहे हैं, इंडेक्स केस के साथ रात दिन वहीं पे साथ है, सोते भी साथ ही हैं इन द प्रीवियस 3 months बिफोर कमेंसमेंट
of TB or before diagnosis of TB. तो अनवर के सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं, क्योंकि वो एक ही घर में रहते हैं और वो रात भी उन्हीं के साथ गुजारते हैं. सो अगर इनकी फैमिली देखी जाए तो कौन है एट रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एक्टिव टीबी फ्रॉम मिस्टर अनवर? वो बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं, वो बुजुर्ग वालिद जिनको शुगर का मर्ज भी है, उनकी बीवी हु इज 7 months प्रेग्नेंट, या उनका एक बेटा जो सैंड ब्लास्टिंग फैक्ट्री में भी काम करता है. सो यहाँ पे रुक के हम थोड़ा सा टाइम से स्पेंड कर लेते हैं कि हिस्टोरिकली हमें पता है कि वो बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के होते हैं, अगर वो किसी टीबी के ऐसे मरीज में से कांटेक्ट में आए जिसको एक्टिव टीबी हो या ओपन पल्मोनरी टीबी हो, इन बच्चों में रिस्क ऑफ डेवलपिंग एक्टिव टीबी इज वेरी हाई. तो ये एक ऐसी कैटेगरी है जो हमेशा से कंसिडर की जाती है कि इनमें टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट शुरू करा देनी चाहिए, चाहे ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो. यानी कि अगर अनवर को टीबी डायग्नोज हो गई है तो वो तमाम बच्चे जो 5 साल से कम उम्र है उनकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए कि कहीं उनको एक्टिव टीबी तो नहीं, और जब एक्टिव टीबी रूल आउट हो जाए तो उनको टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देनी चाहिए. इसी तरह जो बुजुर्ग वालिद हैं जिनको डायबिटीज है, ही इज एट रिस्क बिकॉज ऑफ हिज एज एंड बिकॉज ऑफ हिज डायबिटीज. और फिर याद रखिएगा कि अनवर की वालदा को भी प्रोबेबली टीबी थी. सो इनको स्क्रीन करना बेहद जरूरी होगा टू रूल आउट एक्टिव टीबी. क्या इनको टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये हम बाद में तफसील से डिस्कस करेंगे अपने सब्सिक्वेंट वेबिनार्स में. फिर प्रेगनेंसी और खास तौर पे पेरीपार्टम पीरियड जो होता है उसमें खवातीन बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होती हैं टू डेवलपिंग डिसएमिनेटेड टीबी. सो प्रेगनेंसी के दौरान अगर एक्सपोजर हो गया है तो अनवर की बेगम को जरूर स्क्रीन करके देखना चाहिए कि कहीं उन्हें एक्टिव टीबी तो नहीं हो गई. और पेरीपार्टम पीरियड जो है जिसमें बहुत ज्यादा थकावट और कमजोरी होती है, उस टाइम पे फिर मिलियरी या डिसएमिनेटेड टीबी के रिस्क को जहन में रखते हुए इनकी वाइफ को प्रॉपर केयर प्रोवाइड करना लाजमी होगा. फिर एक यंगस्टर उनकी फैमिली में जो सैंड ब्लास्टिंग फैक्ट्री में काम करता है जिसमें सिलिका जनरेट होती है फॉर ट्रीटिंग सर्फेसिस. अब सिलिका से जब भी कोई कांटेक्ट में आता है तो लंग्स डैमेज हो जाते हैं. सिलिकोसिस इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स जो कि मतलब शदीद टीबी या सिवियर पल्मोनरी डिजीज के लिए प्री डिस्पोज करता है. तो ये वो चंद एक फैक्टर्स हैं जो बिल्कुल जहन में रखने चाहिए जब भी आप हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट को या कॉन्टैक्ट्स को स्क्रीन कर रहे होते हैं फॉर लेटेंट और एक्टिव टीबी. सो जो भी फिजिशियन अनवर को ट्रीट कर रहा है उसकी ये बहुत अहम जिम्मेदारी है कि वो तमाम फैमिली मेंबर्स को उनके रिस्क के हिसाब से स्क्रीन करें, असेस करें, उनके लिए जो अप्रोप्रिएट केयर बनता है वो प्रोवाइड करें. इसमें से हमने ज्यादातर चीजें डिस्कस कर ली हैं, सो वी कैन स्किप दिस. अच्छा, एक बात कर लेते हैं बीसीजी वैक्सीनेशन और न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस. सो बीसीजी वैक्सीनेशन जो है वो प्रोटेक्टिव नहीं है. BCG vaccination only protects against development of miliary or disseminated disease and TB meningitis and to some extent maybe pericardial TB. इसके अलावा लंग की TB या एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB उन लोगों में हो सकती है जिनकी BCG वैक्सीनेशन हुई हुई हो. लेकिन अगर BCG वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई तो रिस्क ऑफ डिसएमिनेटेड TB इज वेरी हाई. तो अनवर की फैमिली में तमाम बच्चों के लिए ये देखना है कि उनकी BCG वैक्सीनेशन अगर नहीं हुई है तो करवा देनी चाहिए. फिर मेलनरिश्ड बच्चे या मेलनरिश्ड इंडिविजुअल्स में रिस्क ऑफ डिसएमिनेटेड डिजीज बहुत हाई होता है. उसके साथ साथ ऐसे लोगों में भी रिस्क ऑफ एक्टिव टीबी बढ़ जाता है जो एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक से एक्सपोज हुए हों. तो घर में अगर एक भी शख्स सिगरेट पी रहा है तो उसका अपना रिस्क और बाकी घर वालों का रिस्क ऑफ डेवलपिंग एक्टिव टीबी ज्यादा होता है बनिस्बत उन लोगों के जिनके घर में स्मोकिंग नहीं की जाती. नेक्स्ट. सो डायग्नोसिस कंफर्म करने के बाद आपने इस केस को नोटिफाई करना है. ये केस नोटिफिकेशन एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी है हम सब लोगों की और आप सब लोगों की जो इस आज की हमारी एक्टिविटी में शामिल हैं. दिस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर कंट्रोल ऑफ टीबी इन पाकिस्तान. सो अच्छा, अब इनका जब हमने मिस्टर अनवर का मैनेजमेंट प्लान बनाया तो आप क्या हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स की स्क्रीनिंग करेंगे? ट्रू और फॉल्स? सो वी ऑल नो दैट दिस इज वेरी ट्रू एंड
It is our responsibility to do so. क्या तमाम घर वालों को INH prophylaxis ऑफर करेंगे? True or false? INH prophylaxis का जहां तक ताल्लुक है, आपने एक्टिव टीबी पहले रूल आउट करनी है, और जब एक्टिव टीबी रूल आउट हो जाए, क्योंकि तमाम लोग एट रिस्क थे ऑफ डेवलपिंग टीबी, और अगर उनको एक्टिव टीबी नहीं है तो इस केस के अंदर जस्टिफिकेशन बन सकती है INH प्रोफिलैक्सिस सबको देने की, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि एक्टिव टीबी रूल आउट कर दिया जाए। फिर ये है कि क्या मिस्टर अनवर को आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर दें फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि ये पहले 2 हफ्ते होते हैं जिसमें मरीज इन्फेक्शियस होता है, उसके बाद इन्फेक्टिविटी नियरली नॉन एग्जिस्टेंट होती है। तो क्या इनको आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किया जाए या नहीं? सो इसका जवाब ये है कि वेस्ट में जहां टीबी बहुत हद तक कंट्रोल की जा चुकी है, वहां पे तो अगर ओपन पल्मोनरी टीबी डायग्नोज हो तो ऐसे मरीजों को वाकई आइसोलेशन वार्ड में दाखिल करके शुरू के 2 हफ्तों में उनको रखा जाता है और बार बार उनके टेस्ट किए जाते हैं टू कंफर्म कि उनकी टीबी जो है नॉन ट्रांसमिसिबल फेज में चली गई है नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा करना मुमकिन नहीं है हर मरीज के लिए। सो यहाँ पे आपने काउंसिल करना होगा उनको कि घर में खिड़कियाँ खुली रखें और वेंटिलेशन का अच्छा इंतजाम रखें। एक्सपोजर तो ऑलरेडी हो ही चुका है घर वालों का, फर्दर 2 वीक्स तक मजीद रिस्क बरकरार रहता है, तो घर वालों की आपने काउंसलिंग करनी होगी। सो ट्रीटमेंट क्या शुरू करेंगे? नेक्स्ट प्लीज। ट्रीटमेंट रेजिमेंट जो हमारा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रेजिमेंट है वो 6 महीने का है, जिसमें पहले 2 महीने हम 4 ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, रिफैम्पिसिन, INH, PZA, एथेम्ब्यूटॉल, और बाकी 4 महीने 2 ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। लीवोफ्लॉक्सिसिन देने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है फिलहाल, और बाकी रेजिमेंट्स जो हैं हमारे वो टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, थेरेपी के लिए नहीं इस्तेमाल होते। नेक्स्ट प्लीज। इसको हम कर देते हैं। So to recap, Pakistan has a high burden of TB. COVID-19 has adversely affected our clinical services and TB disease control programs. Diagnosis of TB should be considered in any patient presenting with fever, cough, weight loss, night sweats. Case notification is mandatory. Bacteriological confirmation is essential. Appropriate steps should be taken to ensure that diagnosis of TB is confirmed. And exclusive reliance on clinical features may be misleading. Screening of household contact is absolutely essential. I think this is my last slide. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Bushra, for your excellent presentation. अभी हम पोस्ट टेस्ट का लिंक भी शेयर कर रहे हैं आपके साथ, और वो हो गया है आई थिंक, तो काइंडली उसको फिल करना शुरू कर दें। हम 2 to 3 मिनट्स इसको दे देते हैं, और इन द मीन टाइम अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो प्लीज चैट में पेस्ट कर दें, और वो हम अभी ले लेते हैं क्वेश्चंस को साथ ही। इसके साथ ही थर्सडे का HIV एको लॉन्च हो रहा है इसी टाइम पे, और उसका भी लिंक हम इस पे शेयर कर देते हैं, तो काइंडली उसको भी ज्वाइन कीजिएगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन HIV में भी दी जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी आए हैं नाजिश फातिमा की तरफ से एंड खुरम शहजाद जी। मैं अभी इसको क्वेश्चंस बॉक्स में भी डाल दें जी। मॉन्टोस टेस्ट रिलायबल है? खुरम शहजाद इज आस्किंग जी। जी जी। सो मॉन्टू टेस्ट के साथ इशू ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप मॉन्टू करवा क्यों रहे हैं। सो अगर आपके माइंड में क्लियर है कि आप क्यों करवा रहे हैं, देन इट्स फाइन। बहुत मर्तबा एक्चुअली एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में खास तौर पे जहाँ किसी हड्डी का या किसी डीप टिश्यू का इन्फेक्शन हो जो रेडियोलॉजिकली CT, MRI या इवन पेट स्कैन के ऊपर सजेस्टिव हो ऑफ टीबी, उसके अंदर सपोर्टिव एविडेंस के तौर पे मॉन्टू या इग्रा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और एक्चुअली बोन टीबी की गाइडलाइंस का ये एक हिस्सा भी है। लेकिन आपके जहन में सवाल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करेंगे। टीबी की डायग्नोसिस में ऑन इट्स ओन मॉन्टू टेस्ट नहीं इस्तेमाल किया जाता, इट कैन बी यूज्ड एज अ सपोर्टिव एविडेंस।
अभी तो हमारा टीबी प्रोग्राम इज नॉट फंक्शनिंग ऑप्टिमली. सो जो प्रायोरिटी है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है. नेक्स्ट प्रायोरिटी में बी एमओटीटी. एमओटीटी के साथ एक और चीज जो है जिस वजह से ये बहुत हाई प्रायोरिटी पे नहीं आएगा वो ट्रांसमिसिबिलिटी है. सो एमओटीटी के बारे में जो एक बात है वो ये है कि वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिसिबल नहीं होता. वो एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी जिनके लंग्स डैमेज होते हैं. सो ऐसी चीज जो ट्रांसमिसिबल ना हो वो प्रायोरिटी में लो होती है क्योंकि उसका पब्लिक हेल्थ जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो निस्बतन कम होती है उन बीमारियों के मुकाबले में जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिसिबल है. आइसोलेशन सेंटर्स की एक अहम जगह है टीबी मैनेजमेंट में, स्पेशली बहुत एक्सटेंसिव लंग डिजीज, ऐसे लंग्स में जो डिस्ट्रॉय हुए हों, ऐसे पेशेंट्स जिनको डिस्ट्रॉयड लंग के ऊपर एमडीआर टीबी हो चुका हो, ऐसे मरीजों में बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए कोई ऐसी फैसिलिटी हो जहाँ पे उनको रेस्ट और ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा सके, उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि इस किस्म के पेशेंट्स बहुत बड़ा रिस्क पोज करते हैं अपने घर वालों के लिए भी और कम्युनिटी के लिए भी. सो टीबी सैनिटोरियम्स एक ज़माने में हुआ करते थे लेकिन वो प्री एटीटी एरा में होते थे, लेकिन उनका रोल कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ और केयरफुल इवैल्यूएशन के बाद अब भी आपको कई मरीज ऐसे मिलेंगे जिनको कि इन सेपरेट क्लिनिकल फैसिलिटीज़ के अंदर कुछ अरसे के लिए मैनेजमेंट करना उनके हक में बेहतर होगा और बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कि डिजीज़ दूसरों में ट्रांसमिट ना हो. जी मजीद क्वेश्चन शायद अभी हमें नजर नहीं आ रहे, जैसे आए तो हम उसको आंसर कर देंगे. ये आपके लिए कि ये सेशन अवेलेबल होगा यूट्यूब चैनल पे जिसका लिंक शेयर किया है डॉक्टर किरण ने. जी पोस्ट टेस्ट कंप्लीट हो गया. Okay, so from Barkatullah, there is a question. A child with chronic diarrhea. हमें सिर्फ 14 रिस्पॉन्सेज मिले हैं पोस्ट टेस्ट में. काइंडली उसको फिल जरूर कीजिएगा to evaluate the session. Chronic diarrhea. अच्छा, रिफेम्पिसिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है, ठीक है. सो टीबी के अलावा और कई जरासीम के अगेंस्ट उसकी इफेक्टिविटी, और हम दो इन्फेक्शंस जिसमें बहुत रूटीनली यूज करते हैं वो ब्रूसेलोसिस है और स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शंस है. इसके इन दो के अलावा बहुत से और जरासीम के अगेंस्ट रिफेम्पिसिन का एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट है. सो कोई भी एंटीबायोटिक जिसका लार्ज वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट हो वो अपेरेंटली आपको लगेगा कि उससे फ़ायदा हो रहा है, और हो सकता है होता भी हो ये क्रॉनिक डायरिया के बच्चों में. लेकिन यहाँ पे सबसे अहम मसला ये है कि रिफेम्पिसिन बहुत ही प्रेशियस एंटीबायोटिक है जिसका यूज़ जो है, जिसका इस्तेमाल रिस्ट्रिक्ट किया है टू ट्यूबरक्यूलोसिस, क्योंकि अगर हमने इसको इस्तेमाल कर के इसको लूज़ कर दिया और इससे रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो हमारे पास टीबी की ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत लिमिटेड चॉइस रह जाएगा और हम एक बहुत अच्छी दवा लूज कर चुके होंगे. सो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए लोगों को, और दे शुड नॉट बी यूजिंग रिफेम्पिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशंस लाइक डायरिया. जी थैंक यू सो मच. और इसके अलावा अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो वो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हैं. अभी मैं इनवाइट करूंगी डॉक्टर नसीम अख्तर को, who is the Deputy National Coordinator looking after TB control program in the Common Management Unit to manage TB, AIDS and malaria. She is an infectious disease specialist and she is a professor at the Pakistan Institute of Medical Sciences. Over to Dr. Naseem.
Thank you very much, Dr. Razia, for the nice introduction. And thank you very much, Dr. Bushra. It was a very wonderful talk. And I think such kind of case discussions would be very much beneficial for all those who are working with tuberculosis. And it was such a good elaboration of the case. And each step was very well explained. By Professor Bushra, and I think in the future we are going to have a very good kind of case-based discussions to improve the learning at all the levels. So I would like to express my sincere thanks to Professor Bushra for launching this TB ECHO program in Pakistan, and this initiative is obviously going to help improve our knowledge and capacity building among the community clinicians through ongoing telemonitoring and education. And it will also help us to improve the National TB Control Program targets, because it is a mandate of National TB Control Program to not only increase the case notification of the TB patients, but it is also very, very important at the same time that the people who are working with the TB patients, they are very much well aware that how to diagnose a case, how to treat a case, how to do a contact tracing, what is preventive therapy, and what is the ideal time to start treatment on these patients. So these all points are so much valid and very, very important from the programmatic point of view as well. So I think this program is going to be a very, very great success, and I would like to congratulate the whole team for launch of this program, and we will hope to have good discussions in the future ahead. Thank you very much. Inshallah. Thank you very much. So Dr. Kiran, for your final remarks, and then Dr. Bushra. Thank you very much. We are grateful and thankful to our experts and participants and SAMI Pharma. I would like to thank Dr. Asad Ali Chaudhary, our director, Dr. Amna, our facilitator, Uzair, our coordinator, Haris for IT support, and Salman. Allah Hafiz. Uzair, you can please call off the meeting. No, there is just one point to mention. There is an evaluation link that is given in the chat. तो काइंडली आप सबको एक इवैल्यूएशन लिंक दिया गया है, उसको इवैल्यूएट जरूर कर लीजिएगा. एंड फाइनल कमेंट बाय डॉक्टर बुशरा और फिर क्लोज करते हैं. Sure. So thank you very much. और ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा. NTP ने लीड ली है, but HIV program is next in line. So inshallah MMIDSP की expert faculty with common management unit and isolation hospital infectious diseases treatment center in Islamabad and Parsa के collaboration से, and actually for HIV ECHO we are collaborating with Apna Merit in USA. So we look forward to welcoming you all again on Thursday. Please join us and see what we have to offer in both TB and HIV ECHO programs. Thank you very much. Thank you so much. Allah, please call off the meeting. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.